Greetings from GD Goenka. This is Akash Vashisht and welcome to our new segment Happy Host, where it is said that there are three pillars that make a great school: the students, teachers, and of course, the parents. Well, here in GD Goenka, we are in constant touch with our parents, and to enhance that experience, we have called up none other than some of our parents, where we are gonna have a discourse, dialogue, and debate on major challenges faced by students, teachers, and of course, the parents. Here we are going to discuss the strategies, the way, how the parenting is done, and we are going to reach the conclusions which is going to provide maximum benefit to our students. We are very grateful to our parents who have joined in this year, and not just these parents, but all the parents who have made GD Goenka a brand throughout the world. The schools are flourishing in more than 80 plus branches all over the world. So a grateful thanks to all the parents that have joined us here today. अब मैं चाहूंगा कि हमारे अभिभावक अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें. Hello, myself Rashmi Pachori. I am Ridhima Pachori's mother. She is in class 4th A. Hello, I am Achintya Sharma. We have got two kids studying here in the school. Aishi Sharma in class 11th and Avika in class 4th. Hi, I am Dr. Nidhi Sharma, proudly mother of two daughters, Aishi and Avika Sharma. Hello, I am Snarika Smriti. I am the mother of Shreyasi. She is in 4th A. Alright, so we are done with the formal introductions. Let's come to the question that is a bit of a surprise from the side of our host. We all know that it is not the greatest call when the call comes from school, neither for parents nor for students. Your views, when did you receive the call from the school? What were the emotions like? सर पहला इमोशन तो फियर होता है. सबसे पहले ये सोचना पड़ जाता है कि अब पेरेंट्स को बताया कैसे जाएगा कि क्यों बुलाया गया है, क्योंकि स्कूल से कोई हिंट नहीं होता. बस यही लगता है कि हाँ कुछ गलती करी होगी इसीलिए बुलाया गया है. मुझे अभी एक्चुअली मेरी बच्ची जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ न्यू एडमिशन है, तो यहाँ स्कूल से जो भी कॉल है मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ यहाँ के टीचर्स से और यहाँ के स्टाफ से. मुझे नहीं लगता कि अगर स्कूल से कोई कॉल आता है तो मुझे लगता है कि किसी सपोर्ट हेड में ही आया होगा. टीचर को अगर कोई जानकारी देनी है मुझे या बच्चे के बारे में कोई भी अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बहुत आसानी से वो मुझे पास आउट करते हैं. वो मुझे बताते हैं कि मैम ये दिक्कत है, तो मुझे मतलब ऐसी डर जैसी कोई फीलिंग नहीं आती. अगर स्कूल से कोई कॉल आता है या बुलाया जाता है तो होपफुली वो किसी ना किसी पॉजिटिव वे में ही वो उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे. I was speaking from a child's perspective. Yeah, and I think sir you have been a very naughty student. Of course. Let's just all agree that Rashmi ma'am has been a very studious student. We didn't all. हम सभी के पास लगता है वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी. शायद जैसे कि अगर मेरे स्कूल से शायद कॉल आता सर हमारा तो हर महीने हुआ करता. It's good to know sir. जी मैम, आपका क्या रिएक्शन था, क्या जज्बात आपके उभर कर आए जब आपको स्कूल से कॉल आया? शॉक, क्या किया है वेरी ट्रू. सर फियर तो नहीं होता, बट ये जरूर होता है सबसे पहले थिंकिंग आती है कि कुछ तो गलत है या कुछ कंप्लेन है या कुछ न कुछ ऐसी बातें इसने गलत करी है जिसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म करना है. लेकिन फिर बात करने के बाद पता चलता है हाँ ऐसा कुछ नहीं है या, लेकिन पहली थॉट फियर वाली ही आती है कि कुछ कंप्लेन आने वाला है, इस वजह से ये कॉल आया है. बट आई गेस यही जो हम कहते हैं ना कि दैट इज द कंसर्न. किसी चीज के लिए जब आप केयर करते हैं तभी आप उसके लिए कंसर्न डेवलप होती है. तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जिसे आप कहते हैं ना दैट यूजुअली आवर सेकंड रिएक्शन इज नॉट द जेन्युइन वन. जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है वही जेन्युइन होता है. बीइंग पेरेंट्स तो बहुत कंफर्टेबल है अब, क्योंकि बच्चों के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस है इस मामले में कि अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और सब है. स्कूल का भी अच्छा इनपुट है बच्चों के ऊपर, तो उस एंड से बिल्कुल कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं होता है कि हमारे बच्चों की कोई कंप्लेंट आ रही होगी. Okay, so let's move on to our next question. This is a very important question and usually parents are very much concerned about this question. बहुत ज़्यादा ही इसी जो बेसिक तनाव भी रहता है घरों में वो इसी वजह से रहता है. और मेरा पहला सवाल है आप सभी के लिए that what are your expectations from your child? क्या आपकी अपेक्षा है करियर के नाते, क्या समझते हैं आप, कितना जरूरी है और क्या लेवल होने चाहिए एक्सपेक्टेशंस के? सर एक्सपेक्टेशंस तो यूजुअली पेरेंट्स की हाई ही रहती हैं
क्योंकि सिमिलरली हमारे पेरेंट्स की भी हमसे हुआ करती थी। हम वो चाहते थे कि हम उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएं, या सिमिलर हमारी भी ये ऐसा ही सोचना है कि बच्चे अच्छा करें। तो अब आजकल के सिनेरियो को देखते हुए थोड़े हम भी इस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं कि वी डोंट फोर्स थिंग्स ऑन देम, हम उन्हें चूज करने दे रहे हैं। वी हैव लाइक वी कीप टैब्स की उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस चीज में वो अच्छा कर पा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे बच्चों का फॉर इंस्टेंस आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, दे मेक गुड पेंटिंग्स, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। सो देयर आर वेरियस। हमारे टाइम में तो पेरेंट्स के सामने 2-3 ऑप्शंस हुआ करते थे, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, तेरे को या तो मेडिकल का एंट्रेंस देना है या वो देना है। नाउ देयर आर सेवरल, बहुत सारे हमारे सामने एवेन्यूज हैं जहां बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड दे कैन बी सक्सेसफुल। स्टूडेंट्स आर नाउ लर्निंग जर्नलिज्म एंड लाइक क्रिएटिव आर्ट्स, like they are good at managing things. Correct. So हम अब जस्ट हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव व्यू नहीं रह गया है, दैट इज वन थिंग। सो अभी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड कि वो क्या करने वाले हैं। हम भी बड़े फिनिकी थे अपने टाइम में, कभी दिमाग में आता था यार पायलट बनेंगे, कभी आता अब तो डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, दिन भर बैठ के देखता है, फिर कहा यार इंजीनियर के मजे, या बुक में पढ़ा, फिल्मों में देखा तो यार कभी कुछ सो things develop. True. We all have gone through that. Ma'am, your views? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक पेरेंट्स की अपने बच्चों से अपेक्षा रखना ये बहुत नॉर्मल है। सभी चाहेंगे कि वो बच्चे बहुत बेस्ट से बेस्ट करें, पर एक बीइंग ए पेरेंट्स में चाहूँगी कि अपने बच्चे का एक मेंटल लेवल देखते हुए उस हिसाब से उनसे अपेक्षाएं करें। हर स्टूडेंट का एक अपना मानसिक स्तर होता है, वो उनको किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करें। आप उन पे ये ट्रस्ट करें कि वो जो भी करेंगे अपना बेस्ट करेंगे, उन पे ट्रस्ट रखें, उनको मोटिवेट करें कि वो अपना बेस्ट दें, तो कंपैरिजन नहीं करें। और बाकी जो भी फील्ड है उनके लिए सारे खुले हुए हैं, और उनको बीइंग ए पेरेंट्स हमको ये है कि वो उनका हम हमेशा वेलकम करें, उनके साथ रहें। जी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई होते हैं, बट हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को अपने बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए जी कि हाँ तुम्हें यही करना है। अभी आज के समय के अनुसार अगर जो भी करना चाहते हैं या जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है, हमें उन्हें उनका बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ आपको वो चीज अगर अच्छी लगती है तो आप वो चीज करो। ये नहीं कि हाँ मुझे ये पसंद है या मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम्हें ये बनना है इन फ्यूचर, तो वो चीज हमें उस पर थोपनी नहीं चाहिए। जी मैम, मुझे लगता है सर कि जैसे सर ने ठीक कहा कि उस समय पे बच्चों के करियर के लिए चॉइसेस कम थी जी। तो पेरेंट्स उनको कहते थे आपको डॉक्टर बनना है या टीचिंग लाइन में जाना है, तो उस समय कैरियर्स की चॉइसेस कम थी, तो पेरेंट्स ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे। अब क्या है कि कंपटीशन भी उतने हाई है और कैरियर के उसमें काफी सारे फील्ड्स होते हैं और हर किसी में काफी अच्छी ग्रो है। बच्चे मीडिया के थ्रू बहुत सारा छोटेपन से ही जानने लग जाते हैं कि कितने फील्ड्स हैं, क्या क्या बन सकते हैं, आगे किस किस चीज में जा सकते हैं, तो बच्चों को भी नॉलेज है। अब हम उनको प्रेशरली ये नहीं कह सकते कि आप टीचर ही बनो या आप डॉक्टर ही बनो या आप इंजीनियरिंग लाइन को ही सेलेक्ट करो, क्योंकि वो भी जानते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा टीचिंग लाइन में ही जाना चाहे, जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर ही बनना चाहे, क्योंकि मुझे भी स्कोप दिखाई देता है कि अगर कल को मेरे बच्चे को मॉडलिंग पसंद है या पेंटिंग पसंद है या उस फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके वहां भी कैरियर में ग्रो अप है। ये इंजीनियरिंग या डॉक्टर या उसी में ही नहीं कैरियर रह गया है। अब आप बच्चे को छूट दे सकते हैं अगर उसको गेम्स में है। पहले आप देखिए गेम्स में उतना कैरियर नहीं होता था, लेकिन अब गेम्स में भी बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अगर बच्चा गेम्स में जाना चाहता है, आप कैरियर के लिए उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि ठीक है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ उसका चॉइस होगी, जहाँ उसकी पसंद होगी, वो वहाँ अच्छा प्रेजेंटेशन देगा। जी बहुत ही उम्दा। आप सभी मेरे साथ शायद इस बात पर अग्री करेंगे कि शायद यही अगर 10 से 20 साल पुरानी जनरेशन से सवाल पूछा जाता तो शायद बड़ा ही एक नपा तुला, जैसे कि सर ने बताया कि वही एक इंजीनियरिंग और डॉक्टर के लिए, क्योंकि उस समय कैरियर की चॉइसेस कम। I think we all the horizons have broadened now. Like we think in a many way. Like for example, I can't believe. Like for example, we all have gone through that generation that a parent might say something that modeling as a career. Yes. Right, sir. I mean, for example, and it's many things. Journalism, photography, and we all know. And for example, you know, even मेरी for example मेरी daughter ने जैसे
बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, शी एक्सप्रेस्ड कि एक बार उसने बोला कि हाँ मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग में मजा आता है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, तो देन आई सपोर्टेड हर कि हाँ तुम्हारे पास फिर क्या है, वेन्यूज हैं, यू कैन बी एन आर्किटेक्ट। करेक्ट करेक्ट। ऐसी लाइंस हेल्प करेंगे। तो हर चीज में बहुत अच्छा ग्रो करने का पर्सपेक्टिव है। And that is why here in GD Goenka we believe that is we try to make sure that the child lives up to the potential. He is able to express himself, and art plays a very essential role in it. So all the activities, the drama, theatrics and everything. For example, sir, many people don't know this thing. We consider being a scientist as a very good career option. But usually what happens is people don't realize this thing that Albert Einstein himself used to play a lot of musical instruments. Of course. Right? And he was an avid cyclist in Germany and in the USA near the universities. They have. And in fact, he started late. Yes, and he was a late learner. Yes, late learner. That if by the standards of that time, the school termed him as a failure. So Yes. it's a good thing that the career. Same with Edison. Yes, definitely, sir. Coming to our next question, is it okay to set the career of a child at a very early age? क्या एक बहुत कम उम्र में ही बच्चे को डिसाइड कर देना कि यही करियर में भेजना है, कितना गलत और कितना सही है? नहीं सर, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि वो बहुत अर्ली होगा किसी भी उस पे अराइव करना एट ए कंक्लूजन कि ये ऐसा ही कर सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट लर्निंग फेज जब बच्चा पूरा अपनी स्कूलिंग और कॉलेज खत्म करता है उसको रियलाइज होता है, इनफैक्ट एज ए पेरेंट्स आपको भी रियलाइज होता है कि उसके प्लसेस क्या हैं, किस तरफ इसका फोकस ज्यादा है या किस पर्टिकुलर एरिया में ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसी चीज को लेते हुए इनफैक्ट स्टूडेंट्स का, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि स्टूडेंट्स का माइंड भी चेंज होता है, टाइम के साथ उनके इंटरेस्ट्स भी डेवलप होते हैं कि हाँ ये चीज ज्यादा बेटर है। कुछ चीजें वो ड्यूरिंग देयर लर्निंग फेज वो सीखते हैं एक्सपोजर से, टीवी से कि हाँ दिस इज समथिंग, और ऐसा भी होता है। फॉर इंस्टेंस इन माय कैरियर वी वर द वेरी फर्स्ट बैच who appeared for computers as a subject in the board examinations. तो उस समय तक हमारे पेरेंट्स को ये पता भी नहीं था कि आईटी जैसा कोई फील्ड भी आ रहा है। Oh, nice. Sir, which board by the way? ICSE board 1990 batch. Okay, that is for the viewers. Sir is talking about the 1990 batch of the ICSE. Yes, sir. So उस समय पे जब मैंने अपना कैरियर चॉइस अपने पेरेंट्स के आगे रखा, इनिशियली दे ऑप्टेड, दे सेंट मी टू दिल्ली फॉर मेडिकल कोचिंग। I did it for 3 months in New Delhi, पटेल नगर। फिर मैंने उनके सामने अपना इंटरेस्ट रखा कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, एंड माय फादर बीइंग ए बॉटनिस्ट और वो थोड़ा अब्रॉड वगैरह जाते भी थे, उन्होंने खैर इस चीज को समझा और उन्होंने मुझे आगे इसको परस्यू करने के लिए ही एग्रीड। सो हमको भी अभी नहीं पता है कि जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीजें अब टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही हैं, उसमें भी जरूरी नहीं है कि हर एक को इंजीनियर ही बनना है, बट देयर आर सो मेनी फील्ड्स कमिंग अप कि अभी हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद बच्चे के सामने क्या क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं। सो इट विल बी टू अर्ली टू डिसाइड। Definitely. Yes. Your use, ma'am. I agree with him. हाँ. सर ने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत जल्दी हमें नहीं करनी चाहिए किसी भी उसके लिए। बच्चे को डिसाइड करने पहले तो हमें समझना चाहिए कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, और फिर ये ठीक बात है कि समय के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, नई चीजें आती हैं, बच्चा समझता है, हम लोग भी समझेंगे उस चीज को कि इसमें करियर कहाँ जा रहा है, लेकिन अभी तो उनको पढ़ना है, समझना है, खेलना है, क्योंकि बचपन दोबारा लौट के नहीं आता, हम उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। हाँ, तो वो एक अपना 10th स्टैंडर्ड तक वो आराम से पढ़ें, समझें, सीखें, उसके बाद वो खुद भी एबल हैं ये समझने के लिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, तब वहाँ से उनकी प्रिपरेशन शुरू होती है। जी। मैं वहाँ तक के लिए चाहती हूँ कि बच्चे आराम से पढ़ें और पढ़ाई को एंजॉय करें। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो क्या आप उस हक में हैं कि जहाँ बच्चा डिसाइड करे कि उसको क्या पढ़ना है? देखिए, चॉइस बच्चा जहाँ उसको इंटरेस्ट होगा वो उस फील्ड में अच्छा करेगा। जी। अगर मेरी बच्ची जर्नलिज्म में जाना चाहती है और मुझे लगता है कि हाँ वो उसमें बेटर कर सकती है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जहाँ पर उसका इंटरेस्ट है वो वहाँ अपना 100% दे सकती है। फोर्सफुली अगर वो जर्नलिज्म में जाना चाह रही है और मैं कहूँगी नहीं आप डॉक्टर लाइन, मेडिकल लाइन में जाइए, वो वहाँ प्रेजेंट नहीं करेगी। अच्छा, आपके विचार?
सर मैं ये कहूँगी कि बच्चों को उनका बचपन जीने दें और मैं उनको प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करूँगी। जैसे बागीचे में फूल खिलते हैं, बच्चे हमारे फूलों के जैसे हैं, हवा चलती है वो इधर उधर अपना मूव करते हैं, तो मैं बस ये देखूंगी कि उनको गाइड करूंगी। बाकी फेवरेबल टाइम आने पे जहाँ उनका इंटरेस्ट होगा उनको जाने दूंगी। तो हम अभी एज ए गार्डनर की जैसे हैं कि उनको देखना है, बच्चे अपना बेस्ट दें। मैं बस यही चाहती हूँ, अभी वो लहलाते रहें, हम भी उनका बचपन एंजॉय करें और वो भी ग्रोथ करें, बस मैं यही चाहती हूँ। So that was a very poetic description. Ma'am, your views? यस, बिल्कुल सही कहा मैम ने। अभी बच्चे काफी छोटे हैं, अभी से उनका फ्यूचर ये कर देना कि हाँ तुम्हें यही करना है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें हर बच्चा जो होता है वो आज के समय में एक दूसरे से अलग है, यूनिक है, उसमें कुछ न कुछ अलग अलग क्वालिटीज है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। हम उनके निर्देशक बन सकते हैं, हम उनके मालिक नहीं बन सकते। बहुत हम उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते कि आपको यही करना है। उनके चॉइस के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और उनके साथ साथ हमें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए कि आप ये जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, और उनके साथ एक फ्रेंडली वे में करके उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। Yes. So it's conclusion can be reached that it's more of the nurturing the child and letting that the talent flower there. You can't inhibit the growth in between. Coming to my next question, that how important is a school's role in child's future? एक विद्यालय का कितना बड़ा किरदार रहता है एक चिल्ड्रन की ग्रोथ में, आपके विचार? मैम? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा। देखिए, माहौल, हर चीज के लिए माहौल बहुत जरूरी है, जगह बहुत जरूरी है। लास्ट कोरोना 2 इयर्स में बच्चों ने वर्क फ्रॉम होम, मतलब हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है, बच्चों ने घर से पढ़ाई की है। तो जब तक बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, मैं बहुत थैंकफुल हूँ जीडी गोयनका की कि उन्होंने पूरा प्रयास किया। बच्चों को घर से टीचर ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, बहुत अच्छे से उन्होंने बच्चों को उन पे कमांड की है। लेकिन फिर भी स्कूल आने का एक अलग तरीका होता है, बच्चे स्कूल आने से बेटर सीखते हैं। और स्कूल भी देखिए, मेरी बच्ची न्यू एडमिशन है यहाँ पर 4th क्लास में और छोटी बच्ची नर्सरी में है। तो मैं ये फील कर रही हूँ कि जहाँ मेरी बेटी पहले जिस स्कूल में थी वहाँ से यहाँ वो बेटर हुई है। स्कूल के माहौल के ऊपर, टीचर के माहौल के ऊपर, टीचर कितना बच्चों को किस तरीके से सिखा रहे हैं। एक होता है आप डरा के सिखाइए, हम टीचर हैं आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। एक होता है हम टीचर हैं, हम आपको समझा रहे हैं, हम भी आपकी सुन रहे हैं। तो वहाँ पे बच्चा ग्रोथ ज्यादा करता है। स्कूल में हर इन्वायरमेंटल स्टडीज, हर तरीके की चीजों पे फोकस किया जाता है। घर में हम सब चीजें वो नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में देखिए सब जगह क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लास में बच्चा सिर्फ उस पर बैठा है और आप जो माहौल अगर स्कूल का नहीं बनता, जब टीचर आपके सामने फिजिकली आपके सामने है तो बच्चा अटेंटिव रहता है क्लास में। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत सारे कैमरा ऑफ करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन स्कूल का जो माहौल है, जो टीचर हैं जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चा वहाँ ज्यादा ध्यान देता है। और ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ने यहाँ पर 4th क्लास में काफी ग्रोथ की है। और छोटी बच्ची ने प्ले ग्रुप तो बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ सीधे नर्सरी से एडमिशन हुआ है उसका और वो बहुत अच्छी कमांड है उसकी, वो बहुत अच्छा पढ़ रही है। स्कूल का मतलब छोटे बच्चे के हिसाब से भी मेरे लिए तो बच्चों का स्कूल का बहुत अच्छा रोल प्ले है। थैंक यू मैम। सर आई वुड एग्री, स्कूल का बहुत बड़ा रोल है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि मैं जस्ट अभी वाले पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं इस होल पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि स्कूल में भेजने वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन से आते हैं। कुछ बिजनेसमैन है जो अफोर्ड कर सकते हैं, खुद एजुकेटेड नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर एक के घर में वो माहौल नहीं होता जो वो बच्चे को उस तरह का एटीट्यूड, उस तरह की का कॉन्फिडेंस सिखा सके। और कुछ पेरेंट्स हैं जो बोथ वर्किंग हैं, उनके घर में एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल है। तो हर घर में एक डिफरेंट टाइप का एग्जिस्टेंस है बच्चे के लिए। जब वो सारे बच्चे एक स्कूल में कलेक्टिवली इकट्ठा होते हैं तो उनकी जो लर्निंग होती है ना, वो जो बच्चे उस तरह के माहौल से नहीं भी हैं वो भी वहाँ लर्न कर रहे होते हैं। कुछ की मदर्स जस्ट हाउसवाइफ हैं, आप उनसे, बहुत सारे लोग कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं है, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करेगा ये बच्चा अपने घर में रहते हुए। लेकिन एक अच्छे स्कूल में जाने से
उसे वो एक्सपोजर मिलता है और वो सीखता है। मैं फॉर इंस्टेंस खुद इस चीज का एग्जांपल हूँ। आई हैव स्टडीड इन मथुरा। We have lived for most of our, like my education days have been spent in Mathura. But still, I have been able to work in US and Europe. I have commanded big companies. So ये सब स्कूल से ही आया है। True. मुझे पेरेंट्स ने ऐसे स्कूल में भेजा जहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको पब्लिक को कैसे फेस करना है, आपको प्रेजेंटेशंस कैसे देनी है। तो वो हम अपने बच्चों के साथ भी फील कर रहे हैं कि जो GD गोइंका ने उनको इनपुट्स दिए हैं, स्पेशली इन कोरोना टाइम्स, उनके संग पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चलती थी ऑनलाइन। बच्चे आर्ट्स भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जस्ट पढ़ाई करके बच्चे का एक मन ही हट गया उससे कि हाँ मुझे ये अब और नहीं बैठना है क्लास में, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही उनको शायद मोटिवेट करता है कि हाँ हमें रोज सुबह से रेडी होके अब इस टाइम पे ये फॉलो करना है रूटीन। सो स्कूल की वो इम्पोर्टेंस है जो शायद घर में बैठ के हम चाहे कितने भी एजुकेटेड भी हों तो भी वो नहीं दे सकते हैं उतनी लर्निंग। Very grateful of you. Thank you very much, sir. Ma'am. सर स्कूल का एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है और उसके पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो एक गीली मिट्टी के जैसे होते हैं और उनको प्रॉपर शेप अप के लिए स्कूल वो एक सांचा होता है। उस वो गीली मिट्टी जब उस सांचे में ढलती है तो वो एक प्रॉपर शेप लाते हैं। जब एक मैडम मिलती है, टीचर मिलती है, वो उस स्टूडेंट्स की कमियों को देखते हुए उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करने में सहायक होती है और एक इस तरीके से वो एक हमको एक उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हम मदर्स जो पेरेंट्स हैं वो तो सॉफ्ट तरीके से उनको ट्रीट करेंगी और हर पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा अच्छा ही होता है, पर एक जो टीचर का नजरिया है, टीचर उनकी कमी को जानते हुए उसको अपने प्रकार से दूर करने की कोशिश करता है। तो जो शेप अप वाली बात मैंने कही है कि यदि हमको उनको गुड शेप देना है, उसके रोल के लिए स्कूल का होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल स्कूल का होना जरूरी है, क्योंकि स्कूल के अंदर आने से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत तरह के बच्चों से मिलते हैं जो अलग अलग माहौल से आते हैं, जिससे सब एक दूसरे से मिलकर अलग अलग तरह की चीजों को जानते हैं, सीखते हैं। और टीचर्स भी हैं, बच्चों की कमियों को जानते हुए उनको बढ़ावा देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, हर तरह की चीजें उन्हें सिखाते हैं, उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। पेरेंट्स घर पे उतना उन चीजों को समझाएं तो वो उसको इग्नोर करते हैं, बट उसी चीज को अगर टीचर्स बताते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ही जरूरी है। So yeah, true that school plays a very pivotal role in any children's career, and the growth, the exposure that he gets in the school, obviously a big factor that we cannot deny it. All right, coming to my next question, which is quite debatable and sometimes controversial as well. That is, what is the role of physical punishment in parenting, and do you use it for maintaining discipline? Starting with you, ma'am. फिजिकल पनिशमेंट देखिए मैं नहीं सपोर्ट करती इस चीज को। मुझे नहीं लगता कि बच्चे को मार के, हाँ कभी कभी डांटना बहुत जरूरी होता है, मैं डांटती हूँ अपने बच्चों को, लेकिन अगर पनिशमेंट के नाम पे कहा जाए तो मेरी पनिशमेंट ये होती है कि अगर किसी चीज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं अपने बच्चे को बार बार समझा रही हूँ और वो नहीं मान रहे हैं, उसको हल्के में ले रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर उनसे बात नहीं करती। ये उनकी पनिशमेंट होती है कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो they come to me and say sorry, no, it's okay. इतनी पनिशमेंट मेरे ख्याल से बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं और धीरे धीरे जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, बच्चे के साथ देखिए फ्रेंडली जितना आप रहेंगे, बच्चे अपने मन की बात उतना आपसे शेयर करेंगे। अगर बच्चे के मन में डर है तो वो आपसे बातें छुपाने लग जाएगा, और ये बच्चों के लिए नहीं आपके लिए हानिकारक है। आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके साथ स्कूल में क्या हुआ, उसके फ्रेंड्स वहाँ क्या हुआ, जहाँ वो खेल रहा है वहाँ क्या हुआ, क्योंकि बच्चा डर की वजह से नहीं बताएगा आपको कि अगर मैंने बताया और मम्मा या पापा जो भी है वो मुझे मारेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली आपको बच्चे को अगर जानना समझना है तो आपको उसका दोस्त बनना पड़ेगा। तो जहाँ खेल वाली बातें हैं तो मैं उनके साथ खेलती भी हूँ, मजाक भी करती हूँ, और
मिमिक्री भी करती हूँ, उनकी भी एक्टिंग करती हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ पर डांटने वाली बात है मैं डांटती जरूर हूँ, मैं फिजिकली उनको नहीं मारती हूँ। और पनिशमेंट वाली बात है तो मैं उनसे बात नहीं करती थोड़ी देर तक, तो वो समझते हैं कि हाँ मेरी मम्मा को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, इतना सफिशिएंट है। और जब बच्चा आपका दोस्त होता है तो वो धीरे धीरे समझने लग जाता है कि पेरेंट्स मेरे क्या चाहते हैं। तो आगे चल के जब वो समझने वाली स्थिति में आ जाता है तो वो खुद ही अपने आप से वैसे काम नहीं करता है। ये उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। आप मारेंगे धीरे, एक मारेंगे, दो मारेंगे, तो बच्चा उसका हैबिचुअल होता चला जाएगा, अरे ठीक है मार लिया, फिर अपने मन की करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स को ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। इतनी पनिशमेंट उसके लिए काफी है। Well, I hope ma'am you are not being politically correct. Silent treatment and no physical punishment. फिजिकल एक्चुअली क्या है, देखिए अगर मैं उसको मारती हूँ तो वो एक बार दो बार, और छोटे से बच्चों में आजकल ये प्रॉब्लम हो गई है कि उनको मारना जो है उनको बेइज्जती फील होती है। मेरी बच्ची नर्सरी क्लास में है और कभी मैं जैसे उसको हल्का सा टैप करती हूँ, जैसे नहीं इसको पढ़ो ऐसे करके, तो मारने की क्या जरूरत है, वो मुझको ऐसे बोलती है। तो मैंने उसको मारा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी बातों पे हंसी आती है। तो मैं यहाँ से मैं समझ जाती हूँ कि ठीक है अभी वो नर्सरी में है तो मारना नहीं इलाज है। हाँ, हमें भी अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जी सर, योर व्यूज? सर हमारे टाइम में तो इनफैक्ट इसको बड़ा नॉर्मल ही ट्रीट किया जाता था। अच्छी पिटाई होते हुए ही बड़े हुए हैं। इनफैक्ट हम लोग तो अपनी मदर फादर की आंख दिखाने पर से बहुत घबरा जाते थे। पिटाई की सिचुएशन तो बहुत सीवियर इंस्टेंसेस में आई अप्रिशिएट कभी कभी आई होगी, और स्कूल के टीचर्स से तो खैर शायद ही कोई बचा होगा हमारे एज ग्रुप में। बट हाँ, आज के पर्सपेक्टिव में थोड़ा आपको उस चीज से बदलना पड़ा है। लीगली भी अलाउड नहीं है अभी स्कूल्स में कि टीचर्स भी बच्चों को फिजिकली पनिश कर सकें। बट ठीक है, मारने पीटने से इतना असर नहीं होता है, बट बच्चों को इतना रियलाइज जरूर होना चाहिए कि हाँ किस समय आप स्ट्रिक्ट हैं, वो आपके एक्सप्रेशन से, थोड़ा बहुत डांट से इतना जरूर समझ जाएं कि हाँ दिस इज वेयर दे हैव गॉन टू फार। करेक्ट, वो उनको रियलाइज होना किसी ना किसी तरीके से जरूरी है। तो पनिशमेंट किसी ना किसी फॉर्म में जरूरी है, चाहे आप उन्हें डांटें या उनकी किसी बात को, हर बात को ना माने। कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी चीज की फरमाइश करी दिस बट दैट हैज टू बी डन देन एंड देयर। आप उन्हें ऐसे भी पनिश कर सकते हैं कि नहीं इस हफ्ते अब तुम्हारी कोई डिमांड्स पूरी नहीं होगी क्योंकि तुमने जो चीज करेक्ट नहीं करी है, वो उनको रियलाइज होना चाहिए। बट हाँ ठीक है, मार पिटाई अब उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब स्कूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी सिमिलर ट्रीटमेंट उनको देना पड़ता है। मैम, जैसे कि कहा गया है कि भय दिन होत न प्रीत, पर समय बदल चुका है। अब बच्चों को हम मार पीट से तो नहीं, वो तो सही नहीं है, पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि हाँ एक पेरेंट्स एक नजर बनाए रखे, जहाँ वो गलत है उसको समझाएं कि ये गलत है, ताकि उनके मन में ये डर जरूर बना रहेगा और अपनी इम्पोर्टेंस भी रहती है कि नहीं ये मैंने किया तो यहाँ मेरे पेरेंट्स नाराज होंगे, मुझे झूठ नहीं बोलना है। सबसे पहले उनको ये बताना है कि आपको जो भी हो आपको हमें बताना है, हम उसको सही करेंगे। तो एक हेल्दी वे में साथ रखते हुए उनको आगे बढ़ने देना है। तो यही मैं कि मारपीट कोई तरीका नहीं है और बचपन दोबारा नहीं आता है, और बच्चे का एक माइंड इतना कोमल होता है कि हम भी बीइंग ए पेरेंट्स हम चाहेंगे कि उनके मन में भी एक अच्छी स्मृति हो, अच्छे अभिभावक बने हम, हमारी मम्मा अच्छी है, हमारे फादर अच्छे हैं, तो उस चीज को है। पनिशमेंट यही है कि आप उनको समझाएं कि नहीं ये चीज आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, और अगर आपने ये मिस्टेक की है तो आपकी ये चीज माइनस हो जाएगी। बस इतना ही पोलाइटली देखिए और बस। यस, सजा देना तो किसी भी हद से सही नहीं है, लेकिन बच्चों को प्यार से ये जरूर समझाना चाहिए कि उन्होंने कहाँ गलती करी है या उनकी कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है, ताकि उन्हें रियलाइज हो कि हाँ यहाँ मैं गलत हूँ। अगर हम उन्हें बार बार सजा ही देते रहेंगे तो उनके मन में एक ये बैठ जाता है कि चलो कोई नहीं, मैं गलत करूंगा तो क्या करेंगे, और एक थप्पड़ लगाएंगे। इससे अच्छा है कि चलो भैया कोई नहीं, मुझे तो गलती करनी है। लेकिन अगर हम उन्हें प्यार से समझाते हैं कि हाँ ये तुम यहाँ गलत हो,
तो उन्हें गलत और सही में फर्क महसूस होगा कि हाँ ये चीज मुझे गलत नहीं करनी है और ये सही है इसलिए ये मुझे करना है। तो इस वजह से हम ये अग्री नहीं करते हैं कि उन्हें सजा देना ही सही है। Okay, so we can reach to the conclusion that there should be certain limitations. You cannot just get away from the traditional methods as well. We have to follow them in a way. Plus, with that, traditionally we have to need to get more modernized with that. So setting up the limitations, maybe, but going into the extreme physical punishment doesn't seem like the correct answer. Okay, coming to our next question, that how important role does discipline play in the growing years of a child? अनुशासन कितना बड़ा किरदार निभाता है एक बच्चे की ग्रोथ ईयर्स में? आइए बात करते हैं अपने पैनल से। मैम, अनुशासन का एक बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत महत्व है। कोई भी चीज जो अनुशासित रहेगी वो वेल डेवलप रहेगी हर जगह, क्योंकि बच्चे यही तक सीमित नहीं है सर। स्कूल लाइफ तो जस्ट बिगनिंग, उसके बाद उनको सोसाइटी में रिप्रेजेंट करना है, आगे चल के देश को रिप्रेजेंट करना है। तो वो छोटे छोटे मैनर से लेके बड़ी बड़ी चीजों को कैसे सीखें। विद्यालय, विद्या का घर, जहाँ हमें सीखना है बच्चों को हाउ टू टॉक, हाउ टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। तो ये सब अनुशासन बहुत जरूरी है। जैसा कि पहले भी कहा है कि गीली मिट्टी की तरह हैं बच्चे और उनको यहाँ शेप देना है। तो अनुशासन वो शेप देने में उनको पूरा हेल्प करता है। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। Sir, truly said, discipline plays a very important role. In fact, I have been a part of NCC in my school years. मैं भी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ, जहाँ हमको एक तरह से मिलिट्री टाइप का डिसिप्लिन भी सिखाया गया। उसकी इम्पोर्टेंस हमें बाद में समझ आया। When you get into a leadership role, जब मैं कंपनी में I was commanding a team of around 150 people, कि वो डिसिप्लिन आप तभी इनकलकेट भी कर पाते हो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आप कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। करेक्ट। एंड व्हेन यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आप चीजें गड़बड़ करोगे। यू विल नॉट प्ले देम थॉरोली एज सपोज टू बी। करेक्ट। तो डिसिप्लिन आपके डे टू डे लिविंग में, आपके एटीट्यूड में, आपके फंक्शनिंग में, सब जगह जरूरी है। जैसे हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल भी करते हैं कि आपको चीजें अपनी ऑर्गेनाइज्ड रखनी है। सुबह आप बेड से उठ रहे हैं तो बेड को ऑर्गेनाइज करके उठो। तो ये छोटे छोटे इन स्टेप्स से छोटे बच्चों में एक डिसिप्लिन आना शुरू होता है। स्कूल में तो वो टीचर्स से सीखते ही हैं कि आपको कैसे उठना बैठना है, कैसे लोगों के बीच में बिहेव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं बड़े बात करने हैं, आपको इंटरप्ट नहीं करना है। तो डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम्स। आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपको इनफैक्ट वहां भी खाने पीने का सब चीज हुआ है। तो डिसिप्लिन से आप फोकस्ड दिखते हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं, और वो ही आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करता है। ट्रू। तब आप सक्सेस में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। ब्रिंग्स आउट मोर कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। मैम, योर व्यूज। डिसिप्लिन देखिए बहुत जरूरी हो जाता है जब बच्चे को हमें एक तरफ मोड़ना है। आप सोचिए, बच्चा जो है बहुत सारी चीजें देख के सीखता है। मैं डिसिप्लिन अगर अपने बच्चों को सिखाना चाह रही हूँ तो मैं उन पे रूल्स रेगुलेशन एकदम पॉइंट नहीं कर दूंगी, नहीं आपको ऐसा करना ही करना है। पहले वो चीज मैं करती हूँ। जैसे हम लोग अगर पेरेंट्स, घर से बच्चा सीखना शुरू करता है कि अगर हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर वे में करते हैं तो बच्चा ये देखता है कि मेरी मम्मा, मेरे पापा किस चीज को किस तरीके से कर रहे हैं। लीड बाय एग्जांपल। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि अगर मैं किसी चीज को कहीं भी इधर रख दे रही हूँ या मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरे बात करने का तरीका जिस तरीके का है, तो मेरे बच्चे मुझे देखेंगे, वो सीखेंगे कि इस तरीके से बात करनी है, हमें इस तरीके से रहना है, जाना है, आना है, चीजों को रखना है प्रॉपरली, और वो चीज बच्चा देख के सीखता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा देख के भी नहीं कर रहा है, वहां हमें थोड़ा सा उसको ये बताना पड़ता है कि ये चीज इस तरीके से नहीं, ऐसे होती है और इसको आप ऐसे प्रॉपर वे में करिए।
तो रश्मि मैम, जहाँ मैं सही समझ पा रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वो जो डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ही इमैनेट होता है, वो आता वहीं से ही, बिकॉज वो मिमिक कर रहे हैं उस चीज को। क्योंकि देखिए सबसे पहले बच्चा जहाँ से सीखना शुरू करता है वो उसका घर होता है, उसके पेरेंट्स जी। उसके बाद वो स्कूल में आता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, बहुत सारी चीजें। देखिए बच्चा क्या है, जब हमसे बहुत सारी चीजें सीख रहा है, लेकिन कहीं अगर उसने कोई गलत चीज देखी तो वो ऑब्वियसली उसको भी कैच करेगा, पकड़ेगा। लेकिन जब हम पकड़ते हैं कि देखिए आपने ये चीज गलत सीखी, वहां हमें उसका करेक्शन बहुत जरूरी है। स्कूल में आके वो टीचर से सीखता है कि आपको किस तरीके से बात करनी है। अब देखिए पेरेंट्स क्या है, बहुत सारी चीजों में, अब घर में हम प्रॉपरली हर चीज तरीके से या वैसे नहीं करते, हम नॉर्मल रह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हम बच्चों को बता रहे हैं। लेकिन स्कूल में टीचर बच्चों को प्रॉपर वे में बताते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। वहां जाके बच्चा अपनी टीचर को देख के सीखता है। आप किसी भी चीज को सबसे पहले अपनी आंखों से सीखते हैं। अगर आपके आंखों में वो परफेक्ट बैठ रही है तो आपको वो अच्छी लग रही है तो आप करेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें आ जाती हैं। कभी कभी बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, क्योंकि वो रियलाइज नहीं कर रहे होते हैं उस चीज की इम्पोर्टेंस को। अगर देखिए वो अच्छी चीजें सीख के आ रहा है तो वो गलत चीजें भी जरूर सीखेगा। तो यहाँ पर आपको ये डिसिप्लिन हार्ड करना चाहिए कि नहीं, ये चीज गलत है, ये आपको नहीं करनी है। Fair enough. मैम, जी बिल्कुल डिसिप्लिन जरूरी है। जैसा कि मैम ने कहा कि कहीं से वो सही चीज सीख के आ रहा है, वहाँ से वो गलत चीजें भी सीखता है। तो गलत चीजें वो बहुत जल्दी उन्हें अट्रैक्ट करती है बच्चों को, और वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। लेकिन पेरेंट्स का ये होता है कि उन्हें समझाना है कि हाँ आपको ये चीज सही लग रही है, ये गलत है और ये सही है। और डिसिप्लिन में रहना बहुत ही जरूरी है। जैसे सुबह से ही हम बच्चों को सिखाते हैं, हाँ बेटा स्कूल जाना है तो इतने बजे उठना है, इतना बजे ये करना है, सारा टाइम टेबल उनका बना हुआ है। और स्कूल में भी आते हैं टीचर सबसे पहले डिसिप्लिन पे ही फोकस करते हैं और उन्हें डिसिप्लिन के बारे में ही समझाते हैं। Correct. So all in all, it's true that they say that Rome wasn't built in a day. It's those micro steps, it's those micro tasks that brings out the character in a person. And definitely, as our all panelists have, I think they will agree on me that it's that those micro tasks, that is what brings out the character of a person. And discipline is the main factor. It's that thing that plays a very pivotal role in it. Coming to our next question now, the over expectations of parents. Sir, ma'am, we all have been exposed to so much advertising these days that someone is getting a job placement in Google, someone is getting placed in Microsoft, this is getting this much lakh of packages, the crores and the dollars, and we all know that the private players have entered the markets, especially in the education sector. So my question to you people is, because of this exposure, and not even if you're not even exposed to the advertising and everything, don't you feel that sometimes in this modern world we are over expecting from the children? Sir, आप अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि अभी एक बहुत रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, टीवी पर एडवर्टाइजिंग आ रही थी लॉकडाउन में, व्हाइट हेड जूनियर, वो सबको दिखा रहे थे कि आपका 7 साल का बच्चा मोबाइल एप्स बना रहा है, उसके लिए इतने इन्वेस्टर्स खड़े हुए हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, उन्होंने अपने बच्चों के लिए वो पैकेजेस ले डाले। उनको लगने लगा कि मेरा तो बच्चा अभी बस 10-12 साल में टीवी पे एक फेमस पर्सनालिटी बन जाएगा, एक शानदार, और मेरे घर में इतना पैसे का इनफ्लो शुरू हो जाएगा। सीरियल्स में चाइल्ड आर्टिस्ट्स वगैरह को देख के सबकी एक्सपेक्टेशन हो गई है मैं बच्चे को डांस स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल में भेज दूं, एक्टिंग क्लासेस, और ये भी कल को एक स्टार। ओवर एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की बहुत बढ़ गई है। कहीं ना कहीं बहुत सारे पेरेंट्स में ऐसा भी है कि जहां उन्होंने फेलियर्स फेस किए हैं कि मेरा बच्चा वो करके दिखा दे। ट्रू, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसे बहुत सारे पेरेंट्स इनएडवर्टेंटली, अनकॉन्शियसली उस चीज को अपने बच्चों के ऊपर थोप रहे होते हैं। तो इस चीज से हमको बिल्कुल बचना चाहिए। वही है ना कि हमें स्कूल में जो बच्चे के स्कूल ईयर्स हैं वो उनके क्रिएटिविटी बिल्डअप होने के ईयर्स हैं। मेरे फादर खुद एक एजुकेशनिस्ट थे और उनका बॉटनिस्ट भी थे, एंड ही वाज एन एमिनेंट प्रोफेसर जो दुनिया भर में इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस में। उनका ये कहना था कि बच्चे को खुद इंक्विजिटिव होने दीजिए, उसे क्वेश्चंस पूछ के लर्न करने दीजिए, उसको हमें ये नहीं कि ऐसे ही होता है, वो तभी वो साइंटिस्ट बन सकता है, तभी वो बन सकता है जब वो खुद सोचना शुरू करेगा, हमारे तरह से नहीं। क्योंकि शायद हमारा
हमारी लर्निंग एक पर्टिकुलर लाइन तक ही लिमिटेड है। हो सकता है उसकी सोच हमसे बहुत आगे हो, तभी तो आइंस्टीन न्यूटन निकल पाए। करेक्ट। हर घर से वो उनके पेरेंट्स इतने फेमस नहीं थे। तो अगर उस तरह का बच्चे में इनकलकेट करना है तो आप उनके ऊपर वो मत थोपिए। अगर उसे ऐप डेवलपर बनना होगा वो खुद रियलाइज करके बन जाएगा। सो दैट्स इट। ओके मैम, मुझे लगता है कि किसी भी चीज को सीखने का एक तरीका होता है। आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो बच्चा उस चीज में ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाएगा। अगर आप उसको, अगर 4th या 5th क्लास का बच्चा है, अगर आप उसको कोडिंग सिखा रहे हैं, जो कि अभी सर ने बोला था कि इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों में, बहुत ज्यादा बच्चों का एक्चुअली माइंड वॉश इस तरीके से हो रहा है ना, वो नहीं हमें ये सीखना है, हमें ये करना है। तो अगर आप बच्चों को इंटरेस्ट के लिए करवाना चाह रहे हैं कि अगर ठीक है बच्चे का इंटरेस्ट है, वो कुछ सीखना चाह रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन आप उसको अभी से कैरियर लाइन में, जैसे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं अरे मेरा बच्चा वो हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। आप उसको अगर स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, अगर जैसे मैं एक कंप्यूटर की उसमें ही ले लेती हूँ कि अगर आप उसके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है, अगर वो बेसिक से स्टार्ट करेगा, सीधे आप उसको कोडिंग से पहुंचा देंगे और उसको बेसिक उसकी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, तो बच्चा कैसे सीखे? कहीं ना कहीं तो स्लिप आउट करे। ट्रू। किसी भी फील्ड में, आप कंप्यूटर में नहीं, किसी भी एक्टिंग में, आप एक्टिंग में उसको पहुंचा दीजिए किसी उसमें, लेकिन उसका ये जो बचपन है, अभी से उस पे इतने सारे कॉस्मेटिक और ये सब चीजें यूज होना शुरू हो जाएगी। ट्रू है ना? और लेकिन उसकी एजुकेशन खत्म हो जाएगी। तो बच्चे को अगर प्रॉपर डेवलपमेंट उसका चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन देखिए पेरेंट्स की हो जाती है, क्योंकि समय के रहते अरे ये भी कर ले, उसका बच्चा इतना आगे निकल गया, हमारा भी थोड़ा करना चाहिए। तो वो नहीं है, बच्चे अपने स्किल के अनुसार उसका डेवलपमेंट हो और स्टेप बाय स्टेप सीखे तो प्रॉपर हो जाएगा, उसमें उस पे परफेक्शन आएगी। सो बेसिकली आपके अकॉर्डिंग बेस ज्यादा स्ट्रांग बेस ज्यादा स्ट्रांग। और कई साइकोलॉजिकली उसमें कभी ये भी होता है कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, ये नर्सरी से शुरू हो जाता है, काफी बढ़ जाती है। ये देखिए नर्सरी से शुरू हो जाता है। मदर्स को ये लगने लग जाता है अरे उसके बच्चे ने 4 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तुम और बताओ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका बच्चा अपनी समझ से जितना बोल पा रहा है वो आपके बच्चे का रियल एजुकेशन है, वो उतना सीख पाया है। लेकिन अगर आप हेल्प करके और 4 बताइए, ये होने लग जाएगा, बच्चा वहाँ कच्चा हो जाएगा। जी मैम। बिल्कुल, जब कंपेयर करते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। जैसे एग्जांपल, कोई बच्चा सीख रहा है, किसी के बच्चे डांसिंग में भी ये हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, अब उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे को भी ये चीजें आनी चाहिए। वो ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। उन्हें लगता है कि हाँ, उनका बच्चा अगर डांस करना सीख रहा है या उसे आता है तो मेरे बच्चे को भी आना चाहिए। उनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ये होती है कि तुम ये भी करो, वो भी करो, वो भी, और बच्चा इन सबके बीच में क्या, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वजह से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है आज के समय में काफी हाई हो जाती है और वो बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। सर मैं ये कहूंगी कि अपेक्षाएं रखें पर अपने बच्चे की एबिलिटी के अनुसार, हम उन पर थोप नहीं सकते हैं। हर बच्चे का एक अपना इंटरेस्ट है, उसको पहले तो स्कूल एजुकेशन उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करती है, आराम से पढ़े, उसके बाद जैसे जैसे वो करता है उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ने दें। यही मैं कहूंगी कि उन बच्चों को जानते हुए, समझते हुए, फिर हम उनके हिसाब से उनको से अपेक्षाएं रखें, पर अपनी तरफ से उन पर प्रेशर नहीं दें कि तुझे ये ही करना है या तुम ये ही बनोगी। नो, उनका इंटरेस्ट देखते हुए हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे एक बच्चे को थोड़ा सा, छोटे बेटी को इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, तो मैं उसको गेम्स में भी उस तरह की चीजें दिलवाई जहां वो चीजों को, मैकेनिक्स को जोड़ के उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है मॉडल्स बनाने में। तो आप उनको इस तरीके से मोटिवेशन दे सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को डेवलप करे। हम उसको थोप नहीं रहे हैं, बट उसको खेल खेल में उस तरफ इंटरेस्ट उसका डेवलप हो रहा है, क्योंकि हमने वो देख लिया इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में उसमें इंटरेस्ट है, जिसको आर्ट का है चलो आप उस तरफ करो। तो ऐसा अगर सब पेरेंट्स करेंगे तो एक मतलब अच्छी जनरेशन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। या जैसे एग्जाम्स में भी होते हैं, अगर बच्चा 60% लाता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है नहीं उसे 95% लाने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि उसे कहना चाहिए ठीक है तुमने 60% लाया, कोई बात नहीं, तुम अगली बार 85 भी ला सकते हो, 80 भी ला सकते हो। तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए
कि जो तुम कर रहे हो सही है, ये नहीं कि हाँ तुमने 80% क्यों नहीं लाए या 95% क्यों नहीं लाए। तो अगली बार वो बच्चा खुश होगा कि हाँ मैंने जो किया है उससे मेरे पेरेंट्स जो है वो सहमत है, तो वो आगे और वो पॉजिटिव वे में उसको लेकर के मेहनत करेगा, तो हो सकता है अगली बार वो 80% भी लाए। तो हमें ये नहीं कहा है तुमने 80 ही लाया, तुम्हें 95 लाना चाहिए था। तो ये चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बच्चा जो कर रहा है उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें अपनी एक्सपेक्टेशन उन पे थोपनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। Correct. That is, so all in all, a child should be rewarded for what he is doing, and plus, as sir and most of our panelists will agree, that exploration of that talent is very important. You cannot expect everyone to become a coder. Someone could be a great painter. You could be hiding a botanist there, right? So it's not important that your son should be curious about electricity just because the other student is interested in it. It's not possible. Each individual is different. Each individual is special. So all in all, I think we all agree that exploration of your child's talent is also a very important step in the child growth years. And I guess that quote is true here, that expectations are painful. And as Walt Whitman has said, हाँ सर, जैसा 3 Idiots मूवी में दिखाया था ना, मेरा इंजीनियर पैदा हो गया। वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। True. All right. Coming to our next question, it has been found that children these days, there's a lack of creativity, and it won't be fair to blame Corona, the pandemic, and the lockdown on it. तो मेरा सवाल है आप लोगों के लिए, क्या वजह है कि बच्चों की वो रचनात्मकता खत्म होती जा रही है दिन पर दिन? किसको आप, whom do you consider the culprit here, मैम? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि सब कुछ समय पहले जो था हमारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली होती थी, और अब न्यूक्लियर फैमिली में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में क्रिएटिविटी कम होती जा रही है। और पहले होता था बच्चे जो, अगर पेरेंट्स वर्किंग है, अगर वो घर पे नहीं है तो दादा दादी हैं, उनके पास है, उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे कुछ सुनते हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जैसी आती थी। बट अभी क्या है कि आज के समय में पेरेंट्स वर्किंग है, वो घर पे होते नहीं है, और बच्चों को हम लैपटॉप, फोन, ऐसी चीजें अवेलेबल कराते हैं, जिसकी वजह से वो उसी में लगे होते हैं, या तो टीवी पे कार्टून देख रहे हैं, या लैपटॉप पे कुछ गेम खेल रहे हैं, या फोन में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी जो है वो कम होती जा रही है। जी, तो आप पूरी तरह से इसको न्यूक्लियर फैमिली में आप समझती हैं? पूरी तरह से तो नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये एक उस चीज क्रिएटिविटी को कम करने में ये जो फैमिली है ये थोड़ी सी एक बड़ी वजह, एक बड़ी वजह इसको मान सकते हैं। मैम आप? सर, किसी बच्चे में रचनात्मक डेवलपमेंट नहीं होने का मूल कारण मैं इसको पेरेंट्स की कमी मानती हूँ। देखिए, बच्चा जो है उसके अंदर क्या है, उसकी चीज को आउट करना ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। स्कूल में बच्चा 5-6 घंटे रहता है, घर में पेरेंट्स के साथ में वो बाकी टाइम भी रहता है, तो एक मैडम से ज्यादा एक माँ जानती है कि मेरे बच्चे को अगर वो सी बना रहा है तो उसको सर्किल बनाने में कहाँ प्रॉब्लम है। तो अगर मैं उसकी कमी को दूर करूं, तो अगर उसका रचनात्मक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है वो, तो उसका सबसे बड़े दोषी हम स्वयं हैं। बीइंग ए पेरेंट्स, अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसकी क्रिएटिविटी या उसके अंदर का जो भी क्वालिटी है उसको हमको निकालना पड़ेगा। जैसे कि सर आप कारीगर है, उसको ये पत्थर है, उनको कैसे उसको बनाना है, तराशना है, वो काम हम पेरेंट्स को करना है जी। तो जब अब हमारी आईज ओपन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, यदि हम उनको एक सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं तो बाकी सब कॉज को साइड करते हुए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ज्यादा महसूस करें और बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाएं। कुछ तौर तरीके, पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा बच्चों को प्रॉपर। वही मैं बोल रही थी कि जैसे पेरेंट्स अगर वर्किंग होते हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि बच्चों को वो उतना टाइम दे पाए कि हाँ तुम्हें ये करना है, या कहाँ, जैसे मैम ने बताया कि सी लिखते हैं तो हमें पता है कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं और वो प्रॉपर वे में क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। और जो ज्वाइंट फैमिली में होते हैं तो अगर सपोज पेरेंट्स नहीं है, दादा दादी हैं, चाचा चाची, मतलब कोई भी हो, तो उनको वो सपोर्ट करता है, वो उन्हें बताता है, जिससे वो क्रिएटिविटी उनकी बनी होती है।
मुझे लगता है बिकॉज ऑफ गैजेट्स और लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ स्कूल वर्क। स्कूल का देखिए रिटन में जो बहुत सारा वर्क बच्चों को मिलता है, मैं केवल इस स्कूल की बात नहीं कर रही, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो मेरे नेबर्स हैं उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पर उनको रिटन वर्क बहुत ज्यादा मिलता है। इवन सोचिए बच्चों को अपने घर से बाहर निकलने का समय नहीं है, क्योंकि उनको वो उनको रिटन में स्कूल में सबमिट करना ही करना है। तो उनके पास बच्चों के पास समय नहीं है कि वो कुछ क्रिएटिव करें। उसके बाद अब जो थोड़ा बहुत उनको समय मिलता है या जब वो खाना खाने बैठते हैं तो गैजेट्स जो उनके टैब हैं, मोबाइल्स हैं, उस पे वो वीडियोस और ये सब देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है वो उधर डाइवर्ट हो गया है। तो थोड़ा बहुत वो कहते हैं मामा थोड़ा देर ये देख लेने दीजिए। तो अब क्या है, पेरेंट्स भी है, बच्चों वर्किंग है, मेन पॉइंट वर्किंग है तो समय नहीं है। दूसरा थोड़ा बहुत समय है तो वो चाहते हैं कि चलिए बच्चा थोड़ा बहुत जो चाहता है हम उसको वो दे देते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि बच्चों पे अगर नोट्स जो उनका एजुकेशन है वो नोट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए बजाय उसको इतना ज्यादा लिखने में। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे प्रॉपर पूरे दिन में मिनिमम आधा घंटा साइकिलिंग जरूर करें। तो अभी मेरे बच्चों के पास टाइम है, फिजिकल एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएटिव जो भी क्राफ्टिंग है उसमें पेंटिंग, मैं पढ़ाई के साथ साथ जो भी वो स्कूल वर्क करते हैं उसके बाद मैं आधा घंटा ये कहती हूँ चलिए आप कुछ भी बनाइए लेकिन पेंटिंग करिए। पेंटिंग में वो और आप अपने मन से करिए जो भी आप करना चाहते हैं, इसमें वो पता चलता है कि वो क्या बनाना चाहते हैं। क्रिएटिविटी इतना समय मैं थोड़ा निकालती हूँ, थोड़ा वो भी निकालते हैं। लेकिन जहाँ पर रिटन वर्क जैसे मिल रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो मेरे नेबर हैं उनके बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनको स्कूल उनको इतना ज्यादा रिटन वर्क दे रहा है कि वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के बाद कंटिन्यू लिख रहे हैं। तो बच्चों पे भी प्रेशर ज्यादा आ रहा है। तो क्योंकि बच्चों को क्रिएटिव बनने के लिए, कुछ भी क्रिएशन करने के लिए थोड़ा बहुत समय चाहिए, बच्चे को रेस्ट भी चाहिए, है ना। आप उसके बाद उसको लर्निंग भी करनी है, रिटन वर्क भी करना है और क्रिएटिव के लिए वही देखते कि समय तो चाहिए थोड़ा, और वो समय उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जो मिल रहा है उसको वो गैजेट में निकाल रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न लाइफस्टाइल और टाइम की कमी को टाइम की कमी है और मुझे लगता है स्कूल को रिटन में थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। जी सर, सर मेरे व्यूज इस चीज पर एंटायरली डिफरेंट हैं। आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि आईटी इंडस्ट्री में रहते हुए मुझे बहुत जगहों पे वर्क करने का, यूरोप, यूएस, सब जगह लोगों के बीच में रहने का मौका मिला कुछ साल के लिए। तो मैंने ये देखा है कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत रेस्ट्रिक्टिव है। वो केवल बुकिश नॉलेज देने पर ही बिलीव करता है। क्रिएटिविटी एक्चुअली क्या है? क्रिएटिविटी है फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग बच्चा कैसे करेगा? जब आप बच्चे को फ्री थिंकिंग का अपने सराउंडिंग्स में उस तरह का एनवायरनमेंट होगा कि वो सोचने पर मजबूर हो। अब इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। एजुकेशन भी है, फैमिली स्ट्रक्चर भी है और अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं, सिचुएशंस हैं। तो मैं एजुकेशन की बात करूं तो हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम केवल बुकिश नॉलेज आपको लर्न करना है, एग्जाम देना है, मार्क्स लाने हैं और इसी में मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाता है। कुछ स्कूल्स हैं, मैं कहूँगा कहीं हद तक जीडी गोइंका भी है, हम भी पढ़े थे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जैसे बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाए कि जहाँ उनको फॉर एग्जांपल ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं, जल्दी होते रहने चाहिए। कुछ डिबेट्स हैं, कुछ बच्चों को एक्सटेम्पोर स्पीच देनी है। यही तो बच्चा अपने दिमाग को यूज करना शुरू करता है कि जो मेरी आज तक की लर्निंग है उससे मैं क्या डेवलप कर सकता हूँ। अभी जैसे आपके स्कूल ने कुछ सालों से एक रोबोटिक्स का लैब सेटअप किया हुआ है। बच्चों को इस तरह के एवेन्यूज ना, मैंने देखा यूरोप, यूएस में छोटे से बच्चों को स्कूल बैग लेके नहीं आते हैं वो स्कूल में। वो उनको क्लासरूम में ही सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। उनको लैब्स में ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है रादर देन क्लासरूम। उनकी एजुकेशन लैब्स में होती है। तो वहां वो बच्चा एक्सप्लोर करता है चीजों को, रटता नहीं है। तो वो एक्सप्लोरेशन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मिसिंग है। हम फैमिलीज में भी यही चाहते हैं कि वो एक दूसरे से कंपैरिजन में कि यार बच्चा हमारा पेंटिंग भी सीख ले, वो भी सीख ले। अगर उसने
देखा आपने कि एक बच्चा दीवार पे छोटा बच्चा है, दीवार पे ड्राइंग बना गया, अरे आप उसे 10 ब्रश का सेट लाके दे दीजिए, कलर्स दे दीजिए, करने दीजिए, कुछ पेजेस बर्बाद, कुछ दीवारें बर्बाद, तो हो सकता है वो एक अच्छा आर्टिस्ट ही बन जाएगा। करेक्ट। तो इस तरीके की चीजें हम लोग सोचते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम वो रैट रेस में चल रहे हैं कि बस हमारे बच्चे को तो ऐसे करके ये सब सीख के सक्सेसफुल बन जाना है। तो क्रिएटिविटी वही जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि मेरे फादर कहा करते थे, वो बच्चे, मेरी बेटी उनके साथ गार्डन में घूम रही होती थी, दादा इस वाले फूल में ये रेड कलर क्यों आया है, उसमें ऐसा क्यों नहीं आया है, रोज में ये क्यों नहीं है, ये बर्ड्स कैसे। तो आप उनको जब तक, और आपको तैयार भी होना पड़ता है उनके आंसर्स देने के लिए। ऐसा नहीं कि आप उसको टाल गए, यार मुझे ही नहीं मालूम है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के क्वेश्चन हमें भी नहीं पता होते, बट मैं उनसे ना नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं देख के बताऊंगा, फिर हमारी भी लर्निंग बढ़ती है। करेक्ट। तो जब तक हम उस तरीके का बिहेवियर साथ में कलेक्टिवली नहीं रखेंगे, उसमें पेरेंट्स भी जरूरी हैं, स्कूल भी जरूरी है, टीचर्स को भी उस तरह की लर्निंग का, और इनफैक्ट जब भी कभी ऐसे इनपुट्स देने का मुझे मौका मिला है स्कूल में भी, तब मैंने कहा है कि हाँ, आप इनकी एक्सपोजर वाली लर्निंग को बढ़ाइए जहाँ पे बच्चा खुद सोचने पे मजबूर हो, रादर देन उसे लर्न करना है। लर्न तो करके हम एग्जाम दे ही लेते हैं। करेक्ट। हम भी साल के एंड में बैठ के फाइनल एग्जाम के समय 4 दिन किताब खोल के नंबर ले ही आते थे। वही है ना, उन पे प्रेशर, बच्चों पे प्रेशर बहुत आ गया, ये इतना लिखिए, इसको कंप्लीट करिए। क्रिएटिविटी तो जो है, ज्ञान पे नहीं फोकस करे, फ्री थिंकिंग के लिए बच्चे को अलाउ करिए, Correct. उसे टाइम दीजिए, करेक्ट। तब क्रिएटिविटी एनहांस होगी। So all in all, it seems like that the lack of exposure and even the lack of time seems to be the two big reasons why the creativity, we can't say that it's going down, but there's a lack of it. We cannot deny the fact. So both of the reasons remain quite big. All right, let's move on to the next question. Moving on to our next question, and this is a very important question here, that what should be the limitations when you need to fulfill your child's dream, his expectations, or to be more particular, his demands? क्या वो पैमाना होना चाहिए कि आप अपने बच्चों की ज़रूरतें कहें, आप उनकी ख्वाहिशें कहें, या फिर अगर आप कहना चाहें उनकी मांगें कहाँ तक वाजिब है कि उनको पूरा किया जाए, और क्या ये एक पार्ट है आदर्श पेरेंटहुड का? सर बिल्कुल सही है। बच्चे के दिमाग में तो किसी भी चीज को जिसको वो देख के लाइक करता है, उसका मन करता है कि मैं ऐसा कर लूं, ये चीज मेरे को मिल जानी चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं, इच्छाएं तो सबकी होती हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। कभी हम भी सोचते हैं, हम बाहर चल रहे हैं, अपनी गाड़ी से अच्छी दूसरे की दिखाई दे रही है, यार वो तो मर्सिडीज चलाता है। सिमिलर एक बच्चे के दिमाग में होता है कि मेरे दोस्त के पास आज ऐसा पेन आ गया, उसके पापा ने उसको न्यू साइकिल दिलाई है, तो मेरे भी पेरेंट्स, वो भी आपसे आके कहेगा मेरी पुरानी हो गई है, मुझे भी आप एक ऐसी अच्छी नया मॉडल का वो दिलाइए, मुझे नया स्कूल बैग लेके जाना है। तो डिमांड्स तो इनसेसेंट हैं, मतलब दे आर नेवर एंडिंग। कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बिठाना पड़ता है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी हैं, ट्रू, और कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक इम्पोर्टेंस भी जगानी है कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप उनकी डिमांड्स पूरी ही करते चले गए, हाँ आज की डेट में शायद हम ज्यादा कैपेबल हैं अपने पेरेंट्स के मुकाबले, करेक्ट, कि हम उनकी डिमांड्स को ज्यादा पूरा कर सकते हैं, बट स्टिल आपको एक वो बैलेंस लाना बहुत जरूरी है कि बच्चे को लगे एवरीथिंग इज हार्ड अर्न्ड। करेक्ट, वही उनको डिसिप्लिन्ड बनाता है लेटर इन लाइफ, कि उनको ये समझ आ जाए कि कुछ भी फ्री में और आसानी से नहीं मिलता है, रियलाइजिंग द वैल्यू। तो हम भी उन्हें उसे एज ए रिवॉर्ड हमें बच्चों को देना चाहिए कि कभी उन्होंने अच्छा बिहेव करा, अपनी चीजें पूरी करी, टाइमली स्टडी किया, अच्छे मार्क्स लाए, तो उनको समझ आता है कि हाँ जब मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मेरी डिमांड्स पूरी भी होंगी, और जब मैं नहीं प्रॉपर्ली बिहेव कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे को पेनलाइज भी किया जाएगा कि हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। हर चीज आसानी से मिल जाना सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे को ये लगने लगता है, फिर वो बच्चा तैयार नहीं होता फेलियर के लिए। सक्सेस के साथ साथ फेलियर के लिए तैयार होना जरूरी है। वेरी गुड। हर कंपटीशन में आप फर्स्ट नहीं आ सकते। यस, वेरी। हर रेस में आप जीत नहीं सकते। ट्रू। लेकिन आप थर्ड पोजीशन के बाद फोर्थ रह के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट।
मेरे खुद ऐसे क्लासमेट्स हैं, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट, और मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे समय के टॉपर्स थे, वो शायद उतनी बड़ी पोजीशंस पे आज नहीं है, जो एवरेज स्टूडेंट्स थे जिनको बैक बेंचर्स कहा जाता था। तो रीजन ये है कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना जरूरी है, रादर देन बीइंग ए मास्टर ऑफ वन इन टुडेज एनवायरनमेंट। और बच्चे को ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज के लिए मेहनत लगती है, सब कुछ इजीली अवेलेबल नहीं होता है। करेक्ट। तो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। मैम, आपके विचार? जी बिल्कुल सही है कि हमें बच्चों की हर जायज और नाजायज मांग को पूरी नहीं करनी चाहिए। उनके लिए क्या सही है, क्या उन्हें हम दे सकते हैं, जैसे सर ने बोला कि फिनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि बच्चा डिमांड कर रहा है कि हाँ मम्मा वो टॉय है वो मुझे चाहिए तो हम उन्हें दे दें, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें वही चीज प्रोवाइड करनी चाहिए, या उनकी वैल्यू को उन्हें समझाना चाहिए कि हाँ ये आपके लिए जरूरी है और ये नहीं है। अगर हम उन्हें इजीली हर चीज प्रोवाइड करा देंगे तो उस चीज को, वो जो स्ट्रगल कहते हैं, वो उस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष करना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो इस वजह से हम ये कहना चाहिए उन्हें जायज नाजायज जो भी मांगे हैं उन्हें हमें बिल्कुल पूरी नहीं करनी चाहिए, या इजीली अवेलेबल नहीं करा देनी चाहिए। हाँ, जब कभी उन्होंने कुछ अच्छा करा, जैसे सर ने कहा कि उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए, तो उस जगह पे हम उनको उस तरह से रिवॉर्ड दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं हमें करना चाहिए कि जब भी उन्होंने मांगा और उन्हें हम बिल्कुल इजीली प्रोवाइड करा। जी मैम, आपके विचार? मुझे लगता है उनकी जो डिमांड्स हैं वैलिड और नॉन वैलिड दोनों होती हैं बच्चों की। बच्चों को जो पसंद आता है वो मांगते हैं। आप उनकी वैलिड डिमांड हो सकता है कभी कभी ऑन द टाइम भी पूरी कर सकते हैं, और कभी करनी भी चाहिए पेरेंट्स को, जिससे बच्चे को खुशी हो। लेकिन कभी उनकी वैलिड डिमांड्स पे आप उनको एक समय दीजिए कि इस समय पर आपकी ये डिमांड पूरी होगी। और नॉन वैलिड जो डिमांड है, जो आपको लगता है बच्चे के लिए ठीक नहीं है, आप उनको उनके ड्रॉबैक्स बता के वो समझाइए, प्रॉपर एकदम से मना मत कीजिए, जिससे बच्चे को ये फील आए कि हमने कुछ मांगा, मम्मी पापा ने बिल्कुल मना कर दिया। आप उनको ये समझाइए कि इससे ये चीज ठीक नहीं है या ये ऐसे नहीं होगा, तो उस पर बच्चे एग्री करेंगे। बाकी उनकी डिमांड्स जो हैं अगर पूरी होगी, भले ही टाइम के साथ पूरी हो, तो बच्चे खुश होते हैं, तो ये जरूरी है। सर, इच्छाएं तो अनंत होती हैं और समय के साथ उन इच्छाओं को पूरा करना भी जरूरी है, पर पेरेंट्स होने के नाते हम उनको एक गोल देंगे कि यदि आपने अच्छे मार्क्स लाए तो मैं 5th क्लास में आपको न्यू बैग दिलवा दूंगी। ये चीज ऐसा करने से उनको वो हार्डवर्क करेंगे और मोटिवेट होंगे कि नहीं, इस चीज को पाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मेरे पेरेंट्स से मम्मी पापा मुझे ये दिल पाएंगे। तो इस तरीके से हम उस चीज को, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को आप फुलफिल कर सकते हैं, बट लेकिन कुछ चीजें हैं जो नेसेसरी इविल हो गए हैं आजकल, जैसे कि मोबाइल फोन्स। जी। अब वो एक बहुत यंग एज पे आप एक बच्चे को पकड़ा देते हैं तो उसका मिसयूज होना शुरू हो जाता है। तो वहां उस बच्चे को वो समझाना जरूरी है कि अभी तुम इसके लिए रेडी नहीं हो, आप थोड़ा यूज करो, हमारे साथ करो, बच्चों से बात करनी है हमारे फोन से कर लो, लेकिन इंटरनेट का अनड्यू एक्सपोजर, करेक्ट, वो एक बहुत गलत चीज है। तो बच्चे के दिमाग पे उस चीज का गलत असर ना पड़े, इसलिए वही है, टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमें रेस्ट्रिक्टिव होना पड़ता है। All right. So basically, it's all about developing a value system. It's about making the child ready for the future, to let him know that victory is always not an option, right? To cope up with failure, and maybe your wishes, they never get fulfilled all the time. All right. So next question might seem like straight out of a Bollywood movie, Nayak. And my question to my panelists are that what if you get an opportunity to be a teacher for one day, and what drastic changes are you going to make in your systems? Ma'am. अगर मैं एक दिन की टीचर बनती हूँ तो ऑब्वियसली कि मैं बच्चों के लाइक्स डिसलाइक्स एक दिन में नहीं समझ पाऊंगी, और जो भी स्कूल का जो भी करिकुलम है, जो भी प्रोस्पेक्ट चल रहा है, उसको भी नहीं एक दिन में चेंज कर पाऊंगी। बट हाँ, मैं अपनी तरफ से एक चीज ऐड करना चाहूंगी, और विद इंटरेस्ट मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि आप ये कर सकते हो। ये एक पॉइंट जो है वो उनकी स्टडी में शायद हो सकता है फायदा करे, क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जैसे मैंने अपनी स्टडी में किया है, कि मैं स्टूडेंट को बताऊंगी कि अगर मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट पे पढ़ा रही हूँ, मैं आपकी न्यू टीचर हूँ, और मैं अपना बहुत अच्छा सा इंट्रो दूंगी, जिससे कि बच्चों से एक दिन में बच्चे मुझे याद करें कि हमारी एक दिन की टीचर बहुत अच्छी सी आई थी और उन्होंने हमें ये एक चीज बहुत अच्छी बताई। तो मैं बताऊंगी उनको कि आप जो है, अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ और आपको मेरी सब्जेक्ट वाइज जो भी मैं आपको बता रही हूँ, और आपको मेरी बातों में जो भी चीज अच्छी लग रही है,
जो आपके सब्जेक्ट को रिलेट कर रही है और आप उसको समझ पा रहे हैं, तो आप अपनी एक नोटबुक पे मेरे जो बोली हुई बातें हैं उनको अपने पॉइंट के हिसाब से नोट डाउन करिए। ये आपको आगे जाके उस सब्जेक्ट में, उसकी स्टडी में आपको फायदा देगा और आप उस चीज को कभी भी भूलेंगे नहीं अगर आप उसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करेंगे। और प्रॉमिसली ये चीज अगर आप बचपन से शुरू करते हैं, जहाँ से आप अपने पॉइंट्स पे लिख सकते हैं, तो आगे चल के ये नोट्स बनाने वाली आदत आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी में, आपके करियर में। मैम आपके विचार? इट्स वेरी गुड। अगर एक दिन की टीचर मैं बनती हूँ तो सबसे पहले सर मैं बच्चों को क्लासरूम से निकाल के बाहर ले जाऊंगी, ओपन एरिया में, और मैं उनको ये समझाऊंगी कि ये परसेंटेज के दौर में मत भागो। ये 95, 98, 99% ये आगे चल के कोई काम नहीं देता है, ये एक अलग है, पर उसके साथ बहुत सारे जो चीजें हैं जो तुमको सीखना है, अपने आप को डेवलप करना है। और उनको ये एक चंद लाइनें मैं कहूंगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग तेरे सीने में जले या आग मेरे सीने में जले, अब ये आग एक ज्वाला बन के निकलनी चाहिए। कि आपको सिर्फ यहाँ एक गोइंका का स्टूडेंट बन के या जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का हीरा बन के नहीं रहना है, आगे चल के तुम्हारे लिए सारा समाज है, तुमको पूरे देश को, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना है। हर इंसान में, हर बच्चे में फुल क्वालिटी होती है, तो आप इनको ये किताबी सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये केमिस्ट्री से के फार्मूलों में मत बांध के रखो। आप इस जहां से भी आगे आपका जहां और भी है, मैं उनको ये समझाऊंगी और यही चाहेंगे कि वो ये चीज सीखें। स्कूल टाइम से उनकी मेमोरीज बहुत बढ़िया हो सर। मैं चाहूंगी कि वो जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे, वो रिस्पेक्ट उनका कोई डर की वजह से नहीं हो। मैं चाहूंगी कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे कि डॉक्टर मिसेस निधि शर्मा आ रही है, डॉक्टर शर्मा आ रही है, तो बाय हार्ट दे। वो मैंने जीत लिया तो मैं एक दिन का मेरा टीचर बनना, प्रिंसिपल बनना सफल हो जाएगा। जी जी सर, आपके विचार? हाँ सर, बीइंग फ्रॉम ए टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, मैं एग्जाम्पल वही रखूंगा। इफ आई वुड हैव बीन ए टीचर तो शायद मैं फिजिक्स या कंप्यूटर्स की क्लास ले रहा हूँ। तो मैं जो चेंज लाना चाहूंगा वो मैं एक दिन के लिए टीचर बन के मैं इंटरेक्टिव क्लास बनाना चाहूंगा। मैं बच्चों के सामने फॉर इंस्टेंस हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंसेप्ट समझाया बच्चों को, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, आई विल गेट रिड ऑफ द बोर्ड। मैं उनके सामने बोर्ड पे लिखने के बाद कंसेप्ट को हम उन्हें दिखाते हैं कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या है, और इस तरीके से एक टेबल पर एक्सपेरिमेंट करके, जो इनफैक्ट मैंने बाहर देखा भी है कि इस तरह से पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप उस कंसेप्ट को, क्योंकि बच्चे को आगे वो एग्जाम में प्रिपेयर होने के लिए रटना है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे माइंड में। उस पॉइंट पे मैं उनसे कहूंगा कि आप सब अब आइए पार्ट में, और आप इस पर्टिकुलर थ्योरम को या इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर आप क्या चीज बना सकते हो जिसमें आप प्रूव कर सको कि करंट और वोल्टेज का ये रिलेशन है। यहाँ बच्चे की क्रिएटिविटी एनहांस होगी। यही एक तरीका होता है जहां से साइंटिस्ट वाला दिमाग निकलना शुरू भी होता है, क्योंकि बच्चा वहां सोचना शुरू करता है कि अरे ये है, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो जब हम बुक से हटकर उस चीज को प्रैक्टिकल नॉलेज में चेंज करना शुरू कर देंगे क्लासरूम को, तो यही मेरा फोकस होगा कि शायद स्कूल्स को इस वे में आगे चलना चाहिए। जो हमारा पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस करें, तो स्कूल्स कुछ इस तरह का पार्ट लर्निंग फ्रॉम द बुक, क्योंकि कंसेप्ट्स को रियलाइज करना जरूरी है, फिर उन कंसेप्ट्स को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन अगर अभी आप किसी से पूछ लीजिए कि गर्मी क्यों बढ़ रही है बाहर, तो सबने पढ़ा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, लेकिन 90% लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे ग्रीन हाउस इफेक्ट कंडीशन कॉज कर रहा है। ऊपर बादल हो गए हैं और इस वजह से आज जो है मौसम गर्म है सिटी के ऊपर। तो जब बच्चा अपनी पढ़ाई को अप्लाई करना सीख जाएगा, वही एक रियल लर्निंग होगी। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीइंग ए लिटरेट एंड बीइंग एजुकेटेड। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड।
Yes, ma'am, your thoughts. सबसे पहले तो अगर मैं एक दिन की टीचर होंगी तो ये करूँगी कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे क्लासेस में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे होते हैं वो आते हैं फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, और जो वीक बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं और वो वहीं बैठना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जो वीक बच्चे हैं उनको पहले मैं आगे बिठाऊँ और जो उन पे फोकस ज़्यादा करूँ, ताकि जैसे क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते हैं तो जो 1 2 3 वाले बच्चे होते हैं बस वही आंसर करते हैं, और वीक बच्चे उनसे बचना चाहते हैं और बच भी जाते हैं। लेकिन मेरा फोकस इस चीज पे होगा कि मैं उन बच्चों पर ही पहले फोकस करूं जो वीक है, ताकि वो उस पे पहले पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें और आंसर करना शुरू करें, क्योंकि फर्स्ट सेकंड वाले तो हमेशा आंसर करते हैं। तो इसलिए मेरा फोकस पहले इन पे होगा। दूसरी चीज ये होगी कि स्टडी को फन वे में करें, स्टोरी के थ्रू, क्योंकि बच्चे कार्टून और स्टोरी देखना बहुत पसंद करते हैं। तो पढ़ाई को ऐसे बनाए, फन वे में करें, ताकि बच्चा ऑब्जर्व ज्यादा करे, उन्हें वो बोरियत महसूस ना हो, वो उसको एंजॉय करके पढ़ाई करे। तो यही है। Okay, so these were the views of our parents if they ever get an opportunity to become a teacher, and these were the changes that they would like to make. Coming to the next question. As you all know, discourse is infinite and the conversations will continue, but time is of essence. So we are in the end hours, we are in the end game of our conversation. And now I would like to ask my panelists one by one, they can share their experience, that how did they felt coming on this platform. Usually the children and the students are here, but we thought we took a new initiative where we're gonna have conversations with the parents. So I will request each and every panelist to say something, to share their experience with us. Ma'am. आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर पाई, और ये भी अच्छा लगा जान के कि बाकी पेरेंट्स के भी यही एक्सपीरियंसेस हैं, और उन लोगों के विचार सुन के भी मुझे अच्छा लगा। और ये मेरे भी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं एज अ पेरेंट, स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, पेरेंट्स को कम मौका मिलता है, और कभी कभी कहीं किसी स्कूल में नहीं भी मिलता है, लेकिन यहाँ जब मैं बोल पा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कोशिश करूंगी कि मुझे आगे भी मौके दिए जाए, और मैं आगे भी आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स बताता हूँ। थैंक यू। And sir, your views? Yes. This has been an enriching experience being a participant in this discussion. जैसा कि मैम ने बताया कि पेरेंट्स को बहुत कम चांस दे पाते हैं, बहुत से स्कूल्स इस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं। तो इट वाज ए गुड थिंग कि हम पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के आगे अपने विचार रख पाए हैं। शायद इससे बहुत सारे पेरेंट्स को भी जो थोड़ा सा जो है हेजिटेंट थे अपने बारे में सोचने में, स्टेप्स लेने में, तो शायद उन्हें भी कुछ लर्निंग मिलेगी, कुछ बच्चे भी सीखेंगे। तो मैं कंक्लूड इस बात से करना चाहूँगा कि हमको प्रेशर नहीं बनाना है स्टूडेंट्स के ऊपर। लर्निंग एक बहुत ही कलेक्टिव वे में चलनी चाहिए स्कूल से, पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि हमें रेट रेस में नहीं लाना है स्टूडेंट्स को। उन्हें, पेरेंट्स को भी ये समझना है, बच्चे भी इस चीज़ को सीख पाएँ कि 99%, 95% लाके जो अभी एक बड़ा कॉमन नॉर्म हो गया है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अभी in the age of startups and entrepreneurship, like people are making success stories out of their efforts where they have gained knowledge over the years. वो हो सकता है कहीं इंजीनियरिंग में या किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने में चूक गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज को एक सही तरफ टारगेट करके और उस चीज को एक सक्सेसफुल स्टोरी में बदला है। और ये बहुत सारे, जैसे अभी एक शार्क टैंक जैसे शो से भी सबके सामने आया कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे साइंस हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, आप कहीं भी सक्सेसफुल स्टोरी बना सकते हैं। ये समझना ही, यही लर्निंग हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में जरूरी है। थैंक यू। आपके विचार में? First, I am very thankful to GD Goenka and our principal Mr. पुनीत वशिष्ठ, जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और यही है कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में अध्यापक के साथ में अभिभावक दोनों का म्यूचुअल है। हम किसी एक को नहीं रिस्पॉन्सिबल कर सकते फुल तरीके से, तो हम अपने बच्चे को दोनों लोग मिलकर के, पेरेंट्स और स्कूल्स दोनों साथ मिलकर के उनका फ्यूचर को बहुत बेटर बनाएं
और आगे भी इस तरीके के इंटरेक्शन होते रहें और हम ऑलवेज इनवाइटेड रहें। तो यही है, बाकी मैं सबके लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक्स। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ हमने बुलाया गया, अपने व्यूज रखने को कहा गया, हमने अपने व्यूज रखे और बहुत से पेरेंट्स इससे इंस्पायर भी होंगे और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहा, ताकि हम अपने अपने पॉइंट्स रखें। हमें अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि हाँ तुम्हें कैसे उनकी परवरिश करनी है, इस बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी रही इसके लिए। All right, that's it folks. This is it from our side. This was our session on the Gap channel. We'll see you next time with new panelists, new hosts and new questions. Stay tuned with us. Please like this video, share this video and subscribe to our channel. Thank you.